Hello everyone, this is Mami Das. In our last session, I discussed about the conceptual meaning of psychology and scope of psychology. Today I discuss about the Unit 4, Part 1, Psychology and Education. The topic is types of psychology. What are the main types of psychology that we can discuss about? So first of all, whoever join the session for the first time, please subscribe the channel, press the bell icon, then you get the notification of future videos. So let's start the types of psychology. So in this type of psychology, you see there two questions rise like what are the types of psychology, discuss, and other question is write about the branches of psychology. तो साइकोलॉजी के टाइप्स कितने हैं और उसका ब्रांचेस कितने हैं उसके बारे में बोलने के लिए टाइप्स के बारे में बोला गया है. सो इन दिस क्वेश्चन द मार्क्स हो सकता है 4 और 6 मार्क्स, कभी कभी 4 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी कभी 6 मार्क्स का भी. सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी. So as you know, psychology is the study of behavior of a living organism. It is a psychology which help an individual to know the behavior of themselves and also the others, how the thinking process of an individual, and also how they do their work in a better way. Those things studied by psychology. So in the types of psychology, the vast area covered in this, and also types also vast. So psychology के types बहुत सारे हैं. So इनमें से 6 types लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन ही 4 या 6 मार्क्स का आता है. अगर और टाइप्स लिखना हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं. First one is educational psychology, developmental psychology, child psychology, clinical psychology, social psychology, and environmental psychology. So, the first type, the educational psychology. So, educational psychology is a type of applied psychology which discuss the process and product of education and which is related to education. So educational psychology applied psychology के एक पार्ट है जो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, और जितने भी प्रॉब्लम हो नॉट ओनली फॉर टीचर्स बट ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है. So this is the educational psychology. Now the second one is the developmental psychology. So developmental psychology also another part or types, or we may say that branch of psychology. So developmental psychology studies the physical, social, and psychological changes that take place in different ages and stages of human life. So, human life के जो stages है और age है उन सब के जो development है और जो changes आते हैं एक human life के अंदर उसको study करता है. For example, फिज़िकली जो चेंजेस आते हैं, सोशली जो चेंजेस आते हैं, और साइकोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट कैन स्टडीड बाय डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. In human life there are broadly 4 types or stages are there, that is infancy, childhood, adolescence, and adulthood.
ह्यूमन लाइफ स्टेजेस है, उन 4 स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं फिजिकली, मेंटली और सोशियली, उन सब के बारे में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करता है। नेक्स्ट वन इज child psychology. So child psychology also another types of psychology, so which deals with the behavioral development of children, how the behavior pattern of a child is developed, how their ideas, intelligence, aspiration, emotional aspects are developed from childhood to adult, and how they need the care in the infancy level, and how one teacher give the education according to the needs and interest of the child, that is studied by child psychology. चाइल्ड साइकोलॉजी के एक पार्ट है जो एक चिल्ड्रन और बच्चों का बिहेवियरल डेवलपमेंट, कितना बिहेवियर में डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में स्टडी करता है। एक चाइल्ड, उसका आइडियाज़ कितना डेवलप हुआ, इंटेलिजेंस कितना डेवलप हुआ, एस्पिरेशंस, इमोशनल एस्पेक्ट कैसे वो डेवलप करता है और कैसे स्टेजेस में डेवलप होता है, उसके बारे में चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी करती है। और चाइल्ड साइकोलॉजी टीचर को भी हेल्प करती है, जैसे चाइल्ड के नीड एंड इंटरेस्ट के अनुसार उसको एजुकेशन देना और कैसे एक सिचुएशन का हैंडल किया जाता है उसके बारे में भी एजुकेशन देना, ये सब चाइल्ड साइकोलॉजी हैंडल करता है। Now fourth one is clinical psychology. From the name you understand this clinical psychology. It is related to the what? It is related to treatment, or this branch deals with the cause, treatment and prevention of various psychological disorders disorders in individuals. So एक individuals की मेंटल प्रॉब्लम और उनमें से साइकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स है, वो डिसऑर्डर्स का कॉजेस क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उस बीमारी या फिर वो मेंटली जो डिसऑर्डर है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते, कम कर सकते हैं, उसके बारे में क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्प एन इंडिविजुअल and it is also describe the causes of mental illness or abnormal behavior of a patient. If we are talking about that mental illness, बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मेंटली इल है। मेंटली इल मतलब who have the टेंशन, एंजाइटी, जो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं किसी की लाइफ में, या फिर वोकेशनल प्रॉब्लम होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल प्रॉब्लम हैं और इंटरनल प्रॉब्लम है जो एक इंसान को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देती है। और उस टाइम पे क्या होता है, जब एक इंसान मेंटली इल होता है तभी वो सोच नहीं सकता वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इन द एंजाइटी लेवल जब हाई होता है तब क्या होता है, इफ़ यू नोटिस दैट इन द न्यूज़ मीडिया and that kind of things, they provide the kind of news
तो बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स. तो मेंटल डिसऑर्डर के कारण बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं. और दिस इज़ द क्लिनिकल साइकोलॉजी विच हेल्प टू ट्रीटमेंट for all those mental illness and also give the prevention from those mental disorders. उन मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट देते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी और उसका सॉल्व जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ से आया, कैसे आया, उन सब का सल्यूशन करता है. और वो सब करते हैं काउंसलर भी हो सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं. कभी कभी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं. कोई भी ऐसे काउंसलर गाइडेंस दे सकता है एक चाइल्ड को. सो दिस इज़ द क्लिनिकल साइकोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी. So this branch of psychology tries to find out how human beings are affected by various social environment and how people influence on environment. एक इंडिविजुअल कैसे इफ़ेक्ट होता है सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू एंड हाउ पीपल अपने इन्वायरमेंट और जो सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में सोशल साइकोलॉजी डील करता है. और like that of if I cited an example that is like of interpersonal relationship, cooperation, obedience to leaders, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relation etc. जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशन एक के साथ हाँ हमारे और सोसाइटी पीपल के साथ कैसा रिलेशन है, कोऑपरेशन हम लोग कैसे कोऑपरेट करते हैं एक के साथ एक, ओबीडियंस ऑफ टू लीडर्स लीडरशिप कैपेसिटी होता है, प्रीजुडाइस होता है, एग्रेशन लेवल क्या कैसे होता है और हाउ वी डील इन डिफरेंट सिचुएशन विच अराइजेस थ्रू सोसाइटी. सो हम लोग कैसे सोसाइटी के अंदर रहते, कैसे हम दूसरों के साथ बात करते, कैसे एक साथ रहते, कैसे कोऑपरेट करते, उन सब के बारे में सोशल साइकोलॉजी डील करता है. और एज वी नो दैट वी आर द ह्यूमन बीइंग और वी आर द सोशल एनिमल. विदाउट सोसाइटी ह्यूमन बीइंग कांट लिव. हम सोशल एनिमल है, हम सोसाइटी के अगर सोसाइटी ना हो तो ह्यूमन जी नहीं सकता. सो दिस इज़ द सोशल साइकोलॉजी. The last not least that is environmental psychology. So what is the meaning of environment? As we know, our surrounding, tree, air, all the things are combined is called the environment na. So it is the environmental psychology which study the influence of physical environmental conditions such as temperature, population, humidity, natural disaster etc. on human behavior. Means how those temperature, population, humidity, natural disaster etc. or all those things how affect an human being or human behavior. That is studies by एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है जो टेम्परेचर, पॉपुलेशन, ह्यूमिडिटी, नेचुरल डिज़ास्टर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के टाइम में एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है और कैसे वो डील करता है उन सब के बारे में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हेल्प करता है. सो दिस इज़ द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी and those are the main types of psychology. I hope you all are understand those types of or branches of psychology. So thank you everyone. Keep watching the videos and subscribe the channel.
थैंक यू।